Good morning, student. I hope that you will fit and fine at your home. And you know very well, for the unit second, all the chapter had been finished, and I completed the revision work of those chapter. And now I start the UT second, means essay 2. And the first chapter is very important for that way is topsy turvy land. At first, I want to tell the summary of the chapter. Okay, are you ready? So let's start. Topsy Turvy Land is a poem written by H.E. Wilson. It is a very interesting poem that takes us to the land where everything is upside down. It tells us about a strange land where nothing is normal. In fact, the normal that we live in, everything is the opposite of that in this land. It has many amusing things. For instance, the sea doesn't contain water and instead it is full of sand. Similarly, there are many other strange things going on in this land, which the poem mentions, like how the children don't go to school during the day, rather they go to school at night. For the houses have a front doorstep at the back. What is the most amusing is that in this land, people walk on their hand instead of their feet. It is an entertaining poem with hilarious sceneries to think about. In this poem, we get to see land from a different perspective. As the name suggests, this land has everything which is upside down. To begin with, the sun rises in the west, so you know it is very amusing to live in a land like that. There are many other strange things going on this land which the poem tells us about. The sea is not made up of water, what it contains sand. The children of this land go to school at night and not during the day like it usually happens. Thus, people are up and about at night as they rest during the day. Further, another interesting thing about this land is that the moon over here has gone its own light. Moreover, in this land, you can find the front doorstep at the back. In another set of strange thing, the people walk on their hands instead of using their feet. Similarly, they don't wear their hat on the head, but on their feet. The boys of this land love playing with dolls in addition of wearing lipstick. On the other hand, another weird thing is that women wear a bindi on their chin, not their foreheads. The plants of this land don't require water to grow. The mice of this land chase cat instead of other way round. You will not find buses in the street because they ran on the sea over here. Likewise, the boats will not be present in the sea but on the street. The jobs of this land are complicated too, so as blacksmith work is done by the potter of this land. The houses over here don't have human but animals living in them with their humans as their pets. The discount rate are always high in this land and people have to pay for what they don't get. People of this land go when they actually come back. You will find the ants to be bigger than the elephant and the gum is used to break things instead of fixing them. And in the end, for summing up,
I want to say that the poem give us a whole another perspective of the normal that we experience each day while telling us about topsy turvy land, where everything is a exact opposite of the normal. Okay, I think all of you will easily understand the concept of the chapter. Now I explain in Hindi as well as that the student can easily understand what is the means about this chapter. Topsy Turvy Land is a poem. टॉपसी टर्बी लैंड इज अ पोएम, ये जो पोएम है रिटन बाय H.E. विल्किंसन, जो कि एच ई विल्किंसन के द्वारा लिखी गई है, इसके पोइट हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम दैट टेक अस टू लैंड, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी जो कि हमें लेके जाती है वेयर एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन, जहाँ हर चीज़ उलट पुलट है, ऊपर नीचे है। इट टेल अस अबाउट अ स्ट्रेंज लैंड वेयर नथिंग इज नॉर्मल, ये हमें बताती है उस दुनिया के बारे में, उस धरती के बारे में, विचित्र धरती के बारे में, जहाँ कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट द नॉर्मल दैट वी लिव इन, जैसे कि हम नॉर्मल चीज़ें हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। एवरीथिंग इज द अपोजिट ऑफ दैट इन दिस लैंड, हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। इट हैज़ मैनी अम्यूजिंग थिंग, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें आनंद करती हैं, एंटरटेन करती हैं। फॉर इंस्टेंस द सी डजंट कंटेन वाटर, जैसे एक्चुअली समुद्र में पानी होता है तो इस लैंड में समुद्र में पानी नहीं है। इंस्टीड इट इज़ फुल ऑफ सैंड, क्योंकि समुद्र किससे भरा हुआ है, यहाँ के टॉपसी टर्वी लैंड में सैंड मीन्स रेत से भरा हुआ है। सिमिलरली देयर आर मैनी अदर स्ट्रेंज थिंग गोइंग ऑन दिस लैंड विच द पोइम मेंशन, जिसमें और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में पोइम में मेंशन हुआ है। लाइक हाउ द चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल ड्यूरिंग द डे, यहाँ पे बच्चे टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं दिन में। नॉर्मली बच्चे स्कूल दिन में जाते हैं, लेकिन यहाँ टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे दिन में स्कूल नहीं जाते हैं। रेदर दे गो टू स्कूल एट नाइट, वो स्कूल रात को जाते हैं। फर्दर द हाउस हैव ए फ्रंट डोर स्टेप बैक, आगे का दरवाज़ा पीछे लगा हुआ है। व्हाट इज़ द मोस्ट अम्यूजिंग दैट दिस इन दिस लैंड पीपल वॉक ऑन देयर हेड, यहाँ पे लोग अपने सिरों पे चलते हैं उल्टे, इंस्टीड ऑफ देयर फीट, अब बजाय अपने पैरों के। इट इज़ एन एंटरटेनिंग पोइम विद हिलेरियस सीनरी टचिंग अबाउट, यह एक बहुत अच्छी पोइम है, आनंद देने वाली मनोरंजक पोइम है, जो कि हम सोचने पे मतलब सोचते हैं। इस पोइम में हम देखते हैं कि जो लैंड मीन्स इस धरती पे फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर की अलग अलग है, एक अलग अलग उद्देश्य है। जैसे कि नाम बताए गए हैं, यह जो लैंड है एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे है। टू बिगिन विद द सनराइज इन द वेस्ट, वैसे सन कहाँ होता है, उगता है ईस्ट में उगता है, यहाँ पे वेस्ट में होता है। सो यू नो इट इज़ वेरी अम्यूजिंग टू लिव इन लैंड लाइक दैट। देयर आर मैनी अदर स्ट्रेंज थिंग गोइंग टू इन दिस लैंड विच इज द पोइम टेलर, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो पोइम ने हमें, पोइट ने हमें बताई हैं कि किस तरीके से। 10 पीपल आर अप एंड अप देयर नाइट एज दे रेस्ट ड्यूरिंग द डे, कि रात में यहाँ काम करा जाता है और दिन में आराम करा जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि दिन में लोग काम करते हैं, रात में आराम करते हैं, बट इन द टॉपसी टर्वी लैंड रात को आराम होता है और दिन में काम होता है। फर्दर another interesting about this land is the moon has over here going up, यहाँ सूरज अपनी रोशनी नहीं फैलाता है, यहाँ चांद अपनी रोशनी फैलाता है, उल्टा हर चीज़ अपोजिट। मोर एवर, इससे भी ज़्यादा, इन दिस लैंड में यू कैन फाइंड द फ्रंट डोर स्टेप एट द बैक। इन अनदर स्ट्रेंज थिंग द पीपल वॉक ऑन देयर हेड इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग देयर फीट, सिमिलरली दे डोंट वेयर देयर हेड बट देयर फीट। नेक्स्ट थिंग आई है कि यहाँ पे लोग अपने सर पे हैट नहीं पहनते हैं, बल्कि अपने पैरों पे पहनते हैं। द बॉय ऑफ दिस लैंड लव प्लेइंग विद डॉल इन एडिशन बेयरिंग लिपस्टिक, यहाँ पे लड़के हैं इस लैंड के प्यार करते हैं डॉल से खेलने में और एडिशन इसके लिपस्टिक लगाते हैं। मीन्स गर्ल्स के लिए है ये, लेकिन यहाँ बॉयज उल्टा होता है। ऑन द अदर हैंड अनदर वियर्ड थिंग जो है, यहाँ पे वुमेन वेयर बिंदी ऑन देयर हेड चिन, बिंदी कहाँ लगाई जाती है, औरतें कहाँ लगाती है, अपने फॉरहेड पे लगाती हैं, लेकिन यहाँ पे इस टॉपसी टर्वी लैंड में जो बिंदी लगा रही हैं औरतें अपनी थोड़ी पे लगा रही है, चिन। द प्लांट ऑफ दिस लैंड डोंट रिक्वायर वाटर टू ग्रो, यहाँ के प्लांटों को आवश्यकता नहीं है पानी की बड़े होने के लिए। यहाँ पे जो इस लैंड में माइस ऑफ दिस लैंड चेस कैट, यहाँ पे वैसे हम लोगों में जनरली देखा जाए कि चूहा बिल्ली के पीछे भागता है, लेकिन यहाँ इस लैंड पे चूहा, मतलब नॉर्मली देखा जाए तो बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, लेकिन इन टॉपसी टर्वी लैंड में चूहा जो है वो बिल्ली के पीछे भाग रहा है। यू विल नॉट फाइंड बसेज इन द स्ट्रीट बिकॉज दे रन ऑन द सी ओवर हेयर, आप देखते हैं कि नॉर्मली कि बसें
जो कहाँ हैं, रोड पे दौड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपसी टर्बुलेंट में बसेस समुद्र में दौड़ रही हैं। द बोट विल नॉट प्रेजेंट इन द सी बट ऑन द रोड। और जो बोट है, जो नॉर्मली हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होती है, बोट जो होती है समुद्र में चलती है, लेकिन अब यहाँ इस टॉपसी टर्बुलेंट में बोट कहाँ चल रही है, बोटों को हम देखते हैं कि वो रोडों पे चल रही है। द जॉब ऑफ दिस लैंड आर कॉम्प्लिकेटेड एज द ब्लैक स्मिथ वर्क इज डन बाई द पॉटर। जो ब्लैक स्मिथ का काम है वो पॉटर कर रहा है, जो पॉटर का काम है वो ब्लैक स्मिथ कर रहा है। मतलब लोहार का काम कर रहा है कुम्हार, और कुम्हार का काम कर रहा है लोहार। द हाउस ओवर हेयर डोंट हैव ह्यूमन बट एनिमल लिविंग ऑन देम, ह्यूमन ऑफ देयर पेट। जो घर है आदमी के, वहाँ जानवर रह रहे हैं, और जैसे जहाँ हम लोग पेट रखते हैं वो आदमी रखे हुए हैं, जानवर आदमियों को पेट रखे हुए हैं। पीपल ऑफ दिस लैंड गो व्हेन दे एक्चुअली कम बैक यू विल फाइंड द एंड टू बिगर देन एलिफेंट। यहाँ आप पाएंगे इस लैंड पे चींटी को बहुत बड़ा हाथी से, चींटी के सामने छोटा है। एंड गम इज यूज ब्रेक थिंग इंस्टीड ऑफ फिक्सिंग। और गम, हम किसी भी गम से भी मतलब गोंद का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को फिक्स करने में, तो यहाँ उसका प्रयोग हो रहा है किसी चीज़ को तोड़ने में। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट दैट now the first step is reading of the chapter. So I read this chapter whole. Okay. Have you topsy turbulent? Have you ever thrown on your school bag on your bed? Have you ever left your shoes and socks here and there? Have you ever played with your wall in your room? Does your room sometimes look like this? Now read about one such upside down land. The people walk upon their head, the sea is made of sand, the children go to school by night in topsy-turvy land. The front door step is at back, you are walking when you stand, you bear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the street of topsy-turvy land. You pay for what you never get. I think it must be grand for when you go to a coming back in topsy-turvy land. H.E. Wilkinson. So, अब लाइन बाय लाइन समराइज करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, हैव यू एवर थ्रोन योर बैग ऑन योर बेड? क्या आपने कभी अपना बैग, स्कूल बैग, बेड पे फेंका है? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? क्या आपने कभी अपने जूते मोजे जो होते हैं वो इधर उधर फेंके हैं? मोस्टली स्टूडेंट करते ही होंगे ये. सम ऑफ द. हैव यू एवर प्लेड विद योर वॉल इन योर रूम? क्या आप कभी खेले हैं अपने रूम में बॉल से? डज योर रूम समटाइम लुक लाइक दिस? क्या आपका भी कमरा कभी ऐसे दिखता है? जो पिक्चर में इस बच्चे का कमरा दिख रहा है इधर उधर उल्टा पुल्टा, ये क्या आपने अपना भी कमरा कभी ऐसा बनाया है? सो अब पोइम देखते हैं. इससे नाउ रीड अबाउट वन सच सब सनडाउन लैंड. इस धरती के बारे में देखिए, सब उल्टा पुल्टा है सब. देखिए, द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड. यहाँ के जो लोग हैं वो अपने सिर से चलते हैं, मतलब सिर की हेल्प से चलते हैं, ना कि पैर की, क्योंकि दिस लैंड एवरीथिंग इज अपोजिट. हर कोई उल्टी सीधी मतलब ऊपर नीचे है. द सी इज मेड ऑफ सैंड. समुंदर में रेत भरी हुई है. इंस्टीड ऑफ वाटर, पानी की जगह है. द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट. यहाँ पे इस लैंड पे बच्चे जाते हैं स्कूल रात को. इन टॉपसी टर्बी लैंड, इस लैंड पे, उल्टी पुल्टी लैंड पे बच्चे स्कूल रात को जाते हैं. समुद्र में रेत भरी हुई है और लोग अपने पैरों के बजाय सिर से चल रहे हैं. द फ्रंट डोर स्टेप एट द बैक. दरवाजा आगे का, घर का दरवाजा जो फ्रंट डोर होता है वो पीछे लगा हुआ है घर के. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. जब यू आर वॉकिंग, आप चलते हुए दिखते हैं. व्हेन यू स्टैंड, जब आप खड़े होते हैं. यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट. आप अपने पहनते हैं अपनी हैट को अपने पैरों पे. इन टॉपसी टर्बी लैंड में. एंड बसेज ऑन द सी यू विल मीट. आप बसों को देखेंगे चलते हुए समुद्र में, जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है. प्लीजर बोट आर प्लान. और बोटों को आप रोड पे देखेंगे. टू ट्रेवल अप डाउन द स्ट्रीट टॉपसी टर्बी लैंड में. यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट.
आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांट. यू पे फॉर यू नेवर गेट. आप चुकाएंगे जो आपने जो आप उस चीज़ के रेट चुकाएंगे जो आपने कभी खरीदी ही नहीं है. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांट. मैं सोचता हूँ ये बहुत ही बड़ा होना है. फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक. जब आप जाते हैं तो लौटते हुए प्रतीत होते हैं. टॉपसी टर्बी लैंड में. आई थिंक माई डियर स्टूडेंट एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड and I have already explained this chapter in your class. So here are some word meaning, new words. सबसे पहले टॉपसी टर्बी मीन्स होता है अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे, उलट पुलट जिसे कह सकते हैं. प्लीजर, प्लीजर मीन्स होता है आनंद, यानी फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट. ओके. ग्रांड, ग्रांड मीन्स होता है बहुत मज़ा. बिग वैसे तो बड़ा होता है लेकिन हेयर यहाँ पे बहुत मज़ा, ग्रेट फन है. ग्रांड, ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है तो बड़ा. तो यहाँ पे इसका ग्रैंड का मतलब है बहुत ज़्यादा मज़ा. नाउ रीडिंग द क्वेश्चन आंसर. व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्बी लैंड. टॉपसी टर्बी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? तो द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट इन टॉपसी टर्बी लैंड. ओके. यहाँ पे बच्चे स्कूल रात को जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस पोइम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी. इस पोइम में अगर बसें ट्रेवल कर रही हैं सी पे, देन वेयर टू द बोट ट्रेवल. तो बोट कहाँ कर रही है? हाउ सेड इट राइटली बी. तो बोट कहाँ कर रही है? बोट कर रही है, बोट द ट्रेवल ऑन द स्ट्रीट पे कर रही है. और इट इज़ नॉट राइटली बी, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ये एक्चुअल में थोड़ी हो जाएगा बोट अगर रोड पे चलेगी. द टॉपसी टर्बी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड. जो टॉपसी टर्बी लैंड है बहुत ही अलग लैंड है हमारे लैंड से. लेट अस ड्रा कंपेरिजन बाय फिलिंग सेंटेंस वेयर एवर नीडेड. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं टॉपसी टर्बी लैंड में और ओवर लैंड में, ये आपको क्लियर करना है. देखिए मैंने लिख भी दिया, आई ऑलरेडी राइट द आंसर. जैसे टॉपसी टर्बी लैंड में पीपल वॉक ऑन देयर हेड, लोग अपने सिर पे चलते हैं. तो अपने हमारी धरती पे पीपल वॉक ऑन देयर फीट, लोग अपने पैरों पे चलते हैं. ओके. सेकंड डैश लगा दिया इन्होंने. द बसेज रन ऑन लैंड, हमारे बसें जो चलती हैं लैंड मतलब धरती पे चलती हैं. यहाँ द बसेज रन ऑन द सी, यहाँ पे बसें कहाँ चलती हैं? समुद्र में चलती हैं. थर्ड इज दे बेयर देयर हैट ऑन फीट, यहाँ पे लोग अपने हैट पहनते हैं पैरों पे, लेकिन हमारे यहाँ दे बेयर देयर हैट ऑन द हेड, वो अपने सिर पर पहनते लगाते हैं हेड पे. फिर फोर्थ में डैश है, क्या है? बोट सेल ऑन द सी, बोटें से हमारे यहाँ समुद्र में चलती हैं. यहाँ बोटें सेल इन द स्ट्रीट, यहाँ पे रोड पे दौड़ रही हैं. सिर्फ जहाज जो है, बोट है, नाव हैं, वो रोड पे कर रही हैं रनिंग. नेक्स्ट इज पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट. हमारे यहाँ लोग चुका रहे हैं, पैसे दे रहे हैं जो उन्होंने नहीं खरीदी है, जो वो नहीं पाते उसका चुका रहे हैं. हमारे यहाँ लोग चुकाते हैं पैसे जो वो पाते हैं. मतलब हमने अगर कोई चीज़ ली है 10 रुपये की, तो 10 रुपये हम चुकाएंगे जब हम 10 रुपये की चीज़ ले लेंगे. वहाँ पे चुकाया जाता है लेकिन लिया नहीं जाता है. यहाँ पे जो है लेट्स लिसन फन विद साउंड. यहाँ कुछ वर्ड है, क्लियर नहीं आ रही पिक्चर, आप लोग देख लेना बुक में से. ये राइमिंग वर्ड है, जैसे कहीं आ जाए आपको RHYMING राइमिंग वर्ड आ जाए, कहीं आपको पैसेज में आ जाए नीचे लिखा हुआ पोइम के पैसे में गिव द राइमिंग वर्ड ऑफ दिस स्टैंजा या ऑफ दिस पोइम, इस तरीके से. तो राइमिंग वर्ड क्या होता है? जो लास्ट में उनकी रिदम मिलती है, जिनका साउंड अलग होता है. जैसे लास्ट में जिनके, ऐसे हिंदी में देखो आलू हो गया, आलू है, भालू है, कचालू है, सालू है, मालू, इस तरीके से मतलब रिदम मिलनी चाहिए. तो यहाँ पे देखिए रिदम वाले शब्द जैसे ये है प्लेजा, ट्रेजा एंड मेजा, एक जैसा साउंड क्रिएट हो रहा है. अगर आप कहीं देखें भी प्लेजर का क्या है राइमिंग वर्ड क्या होगा, तो आप ट्रेजर करें या मेजर करें. नेक्स्ट इज वेयर, बेयर का टेयर, स्टेयर, वेयर. ओके. ये सब है बेयर, टेयर, स्टेयर, वेयर, ये सब राइमिंग वर्ड है इसके. नेक्स्ट है प्लांट, कैन, स्कैन, स्ट्रैंड. ओके. टॉपसी टर्बी, हर्ली टर्बरली और करली बरली, ये सब एक चीज़ ये है, ये राइमिंग वर्ड होते हैं यहाँ पे. ओके. एंड माय डियर स्टूडेंट, आपको यू राइट डाउन ओनली क्वेश्चन आंसर ऑन योर बुक, ऑन योर नोटबुक, एंड द एक्चुअल रीजन ऑफ द एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड फुली वाई एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, कि हर बच्चा इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट है वो क्लियर से समझ जाए कि क्या इस पोइम में है.
ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब ना हो समझने में, बस यही बताया है आपको। यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर, ओनली क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक, ओनली क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग। ओके, वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर लिख लेना। एंड आपने जो वीडियो स्लोगन के लिए तैयार की गई है रिपब्लिक डे पे, उसके भी आप तैयार कर लेना। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।